Welcome to students. Yesterday lecture we have discussed about the Lorentz transformation equation, and we derived the Lorentz transformation equation and found four equations known as the Lorentz transformation equation. Now today lecture we will discuss about the consequences of the Lorentz transformation equation. So first consequences of the Lorentz transformation equation is the length contraction. So we discussed today is the length contraction. Then what is the length contraction? Length contraction is the a moving rod appears shorter than when it is at rest. Such theoretical phenomenon is known as the length contraction. ए मूविंग रॉड एक कोई भी अगर रॉड मूव कर रही होती है तो वो हमें शॉर्टर अपीयर करेगी ऑलवेज शॉर्टर अपीयर करेगी। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बट कंडीशन इज दैट द velocity of the rod must be incomparable to the approximately the velocity of the light. Okay, so today we'll be discuss about this phenomenon. For proving this phenomena, we suppose that two frame S and frame of reference are S and S dash, where S is at rest and S dash is moving with constant velocity with respect to S. Constant velocity V with respect to S. Now suppose a rod is kept on S dash frame of reference. Now suppose a rod is kept as S dash frame of reference. The starting and ending coordinates of this rod is x1 dash and x2 dash. x1 dash and x2 dash. So if we measure the and for S frame of reference, the starting and ending coordinates of the rod are x1 and x2. So if we measure the length of the rod, then we can simply separate these coordinates, that means x2 dash minus x1 dash. This will be give the length of the rod for S dash frame of reference, and for S frame of reference the coordinate and the length of the rod will be x2 minus x1, x2 minus x1. So suppose, so for S frame of reference, for x dash S dash frame of reference, the length of the rod is the x2 x2 dash minus x1 dash equals to L naught. Suppose the length of the rod for S dash frame of reference is x2 dash minus x1 dash equals to L naught. This is the proper length of the rod. This is the proper length of the rod because the rod is kept in S dash frame of reference. If the observer on S dash frame of reference uh, see the rod, it will be length, its length will be proper, its length will be proper. अगर कोई ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से इस रॉड को देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर लेंथ होगा, क्योंकि बिकॉज ये रॉड ऑब्जर्वर एस के एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ये रॉड रेस्ट पे होगी, यानी कि उसका जो लेंथ उसको रॉड जो है वो लेंथ पे दिखाई रेस्ट पे होगी और उसके रिस्पेक्ट में ये हमें प्रॉपर लेंथ हमें मिलेगा। तो फॉर एस डैश रेफरेंस द लेंथ ऑफ द रॉड इज x2 डैश माइनस x1 डैश एंड इक्वल्स टू L नॉट। इट ये हमने सपोज किया है L नॉट है, देन इट इज द प्रॉपर लेंथ। ओके, सिमिलरली फॉर ऑब्जर्वर
जो एक दूसरा ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, दूसरा ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अगर वो इस रॉड को देख रहा होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये रॉड हमारे वी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, वी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, और इसकी लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, एक्स वाई जेड। इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, एक्स वाई जेड। तो उसके अकॉर्डिंग इस रॉड की लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1। और ये हमें, तो सपोज हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर और इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेंथ ऑफ द रॉड विल बी L इक्वल टू x2 माइनस x1। हमने क्या सपोज किया है, जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग लेंथ जो है रॉड की L है, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ है रॉड की L नॉट है। ओके, एंड अगेंस्ट फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जो हम लोगों ने निकाला था, जो एक्स का फॉर्म जो इक्वेशंस आई थी वो क्या थी हमारे पास, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, एंड टी डैश इसमें चेंजेस आए थे, यानी कि एक्स एंड टी में चेंजेस आए थे, एक्स और टी में चेंजेस आए थे। तो यहाँ पे हमें रॉड की लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं हम लोग, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम x1 और x2 यूज कर रहे हैं तो x डैश विल बी x1 डैश विल बी इक्वल्स टू x1 माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड फॉर x2 डैश the equation will be, the formula will be x2 dash equals to x2 minus vt upon root 1 minus v square upon c square. Okay, x2 minus vt upon root 1 minus v square upon c square. So हम क्या करेंगे अब, सेकेंड इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लोग यूज करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर लेंथ वाली है, यानी कि x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल्स टू L नॉट है। तो हम लोग L नॉट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जो x2 डैश माइनस x1 डैश करके, और x2 और x1 डैश हमारे पास क्या आया था, x2 और x1 डैश हमारे पास है क्या है, ये वैल्यू है इक्वेशन 3 एंड 4। तो इसको हम लोग सेपरेट करके क्या निकाल सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू x2 माइनस x1, बिकॉज माइनस वी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, x2 माइनस x1 अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, x2 माइनस x1 अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और x2 माइनस x1 को हम लोगों ने क्या सपोज किया था, सपोज इट इज L नॉट, एंड x2 माइनस सॉरी x2 डैश माइनस x1 डैश को हम लोगों ने क्या सपोज किया था, L नॉट, एंड x2 माइनस x1 को हम लोगों ने सपोज किया था L। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि L नॉट इक्वल्स टू L अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, L इक्वल टू L नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि दिस मीन्स क्या हुआ, L नॉट हमारी प्रॉपर लेंथ थी, L नॉट हमारी प्रॉपर लेंथ थी, और L हमारा क्या था, अपेयरिंग लेंथ था, L हमारा क्या था, अपेयरिंग लेंथ था। अच्छा, अब इस इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे, अगर हमारा v यानी कि v वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ
of apparatus, sorry, velocity of s dash frame of reference or velocity of the rod is comparable to c। अगर कंपेरेबल टू सी है, यानी कि वेलोसिटी जो है हमारी सी के कंपेरेबल में आई रहेगी, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो √1 - v² अपॉन c² ऑलवेज लेस देन 1 होगा। बिकॉज ये वैल्यू हमारी ऑलवेज लेस देन 1 होगी, बिकॉज v की जो v की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में आ जाएगी, इसके आसपास रहेगी कुछ। तो हमारी जो ये क्वांटिटी आएगी √1 - v² अपॉन c² जो होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, बिकॉज 1 माइनस भी है और रूट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एल की वैल्यू आएगी हमारी, ये एल की वैल्यू आएगी ऑलवेज लेस देन द एल नॉट। एल विल बी ऑलवेज लेस देन द एल नॉट। दिस मीन्स दैट द appearing length of the rod will always less than the proper length। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा होगा इस रॉड को, इस मूविंग रॉड को, वो उसको क्या होगा, ये रॉड उसके एक्चुअल लेंथ से शॉर्टर दिखाई पड़ेगी, एक्चुअल लेंथ से शॉर्टर दिखाई पड़ेगी। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन्स दैट इसके रॉड के लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, यानी कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होगा, जो यहाँ से वो इस रॉड को देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये रॉड हमारे उसको शॉर्टर दिखाई पड़ेगी इन कंपेरेबल टू जो उसकी एक्चुअल लेंथ है उससे कम दिखाई पड़ेगी। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इस फिनोमिना को कैसे सॉल्व किया गया है, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम लोगों ने इस फॉर्मूले को निकाला है। ठीक है, now again second condition क्या है, तो first condition is the v velocity is comparable to velocity of the light। velocity of light के आसपास अगर v की velocity है, तो जो actual length है, वो जो appearing length है, वो actual length से always कम दिखाई पड़ेगी। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करेंगे। रिलेटिविस्टिक मोशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज मूविंग इन कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। वेलोसिटी ऑफ द लाइट के आसपास मूव करेगा, यानी कि उससे अब तो नहीं हो सकता, वेलोसिटी ऑफ लाइट से उसके पास में, उसके पास की कोई वैल्यू होगी। फिर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करते हैं, यानी कि v जो है, v की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होगी। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये वाला फैक्टर v² अपॉन c² को टेंस टू जीरो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत कम मिलेगा, यानी कि टेंस टू जीरो कर सकते हैं। और टेंस टू जीरो करेंगे तो √1 बचेगा। √1 का मतलब है कि 1 वैल्यू आएगी। जो 1 वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल टू एल नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी, अगर हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है, तब वहां पे लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे लेंथ का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि वहां पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला लग रहा है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की एक ही कंडीशन है कि जब रॉड और फ्रेम मूव कर रहा होगा हमारा वेलोसिटी इन कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अब इफ इस थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन हो सकती है इफ v इक्वल टू सी। अगर हम v इक्वल टू सी कर दें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रॉड और फ्रेम एस डैश को इक्वल कर दें वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करा देंगे, तब क्या हो सकता है,
then it will be 0, because सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1, यानी कि ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी कि एल नॉट मल्टीप्लाई बाई 0, इट विल बी 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जो अपेयरिंग लेंथ है वो भी हमारी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स द लाइट इज इमेजिनरी हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, लेंथ जो है हमारे इनविजिबल हो जाएगा। दिस मीन्स दैट कि अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रॉड है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये रॉड अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लगी तो ये इनविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लाइट जो है ये रॉड में गायब हो जाएगी, यानी कि दिखाई नहीं पड़ने लगेगी। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लगेगा तो वो क्या करेगा, जो रेस्ट पे ऑब्जर्वर है उसको वो चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, वो इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस का फॉर्मूला है। और इसके बेस में क्या प्रूव किया है, इसके बेस में हम लोगों ने प्रूव किया है कि फर्स्ट, अगर कोई ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में मूव कर रहा होगा या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो ऑलवेज शॉर्टर दिखाई पड़ेगा जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। जो रेस्ट पे ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग जो रॉड या कोई ऑब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टर दिखाई पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करने लगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से, देन वो इमेजिनरी हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। तब ऑब्जर्वर उसको नहीं देख पाएगा। ठीक है। तो दिस phenomenon is known as the length contraction. दिस फिनोमिनन इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और इसके बेस्ड पे हम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके इस लेक्चर्स के बाद में हम लोग इस न्यूमेरिकल के पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात की है। और कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, टाइम डायलेशन के बारे में बात करेंगे, प्लस इसके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के जो है न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।